Good morning, 10th Standard, and welcome back to SS class. Today, we are going to continue with the consumer awareness chapter, and I'll start with the topic legislation concerning consumer rights. मतलब कंज्यूमर राइट्स को के लॉज क्या बने हैं. ठीक है, लेजिस्लेशन मीन्स वी टॉकिंग अबाउट द लॉज. ठीक है, व्हाट आर द लॉज विच आर कंसर्न टूवर्ड्स द कंज्यूमर राइट्स, लॉज विच गिव कंज्यूमर को जो राइट्स देते हैं, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर गिवन टू द क्लाइंट्स एंड व्हाट आर द लॉज फ्रेम्ड. Consumer Protection Act is a milestone in the history of social economic acts of India and is helpful to people. For protection of right of consumer and their interests, this is the most progressive and acceptable law which provides following provisions. Because जब तक किसी चीज़ के laws नहीं बनते ना तब तक वो चीज़ follow properly नहीं होती, right? So let us read about the laws. Related laws to consumer service. Under the above legislation, in terms of trader, that means the businessman, commodity, and service, a consumer may be defined as follows. In the terms of commodity, a consumer is the one who has legal protection. For this, any of the following person. पहले तो हमने लास्ट टाइम बात किया था कि who is called as a consumer, right? Someone who buys a product or a service in lieu of money, in exchange of money, right? If you are a consumer, then what kind of legal protection is given to you, right? If a person has made payment or has promised to make payment or has agreed for any offered mode of payment in lieu of purchase of any commodity or services called consumer, which I told you right now. Either you have paid or you have promised to pay or you have agreed that you are going to pay for this product or a commodity or a service, you are a consumer. The person who pays the value of product either in the form of installments or by hire purchase system or hires a service either receives a service is called a consumer. अगर आप पैसे जो है मनी जो है आप इंस्टॉलमेंट में पे करो, हायर आपने किया है, रेंट बेसिस पे किया है, राइट, वो सारी चीज़ों से जो है यू आर कॉल्ड अ कंज्यूमर. But if any person sells a purchased product for business or commercial purpose or provides free of cost services or the services under the personal service agreement, they are not covered under this legislation and are not protected. अब किसी पर्सन ने जो सेल कर रहा है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने सेल किया है, राइट? तो दैट मीन्स कि आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज़ ले रहे हो, यू हैव नॉट पेड, राइट? सो डेफिनेटली यू डू नॉट कम अंडर द दीज लॉज कि आप एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ मिली हो, उसके बाद अगर आप बोलो कि नहीं ये तो सही नहीं है, राइट? सो यू डू नॉट कम अंडर दिस कैटेगरी. द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर, इस कैटेगरी में द राइट्स, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गिवन टू ओनली दोज पीपल जिन लोगों ने प्रोडक्ट या सर्विस लिया है इन ल्यू ऑफ मनी. ठीक है, इफ यू हैव पेड फॉर इट और यू हैव प्रॉमिस टू पे फॉर इट. Thus, objective of this law is to see that the consumer gets a product or a service of high quality, along with it protections of interests of the consumer can also be seen. अब ये लॉस का मतलब ये है, ये लॉस क्यों बनाए गए हैं? सो दैट अ कंज्यूमर इज नॉट चीटेड एंड द कंज्यूमर गेट्स हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी product or service. According to this provision, if the type, quality of goods or service as well as the agreement are not as per the prevailing law or provided, services are defective or deficient or commodity standard, substandard quality, the consumer may complain under the Consumer Protection Law. जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विस आप ले रहे हो, राइट, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो अग्री किया है एग्रीमेंट में है उसके अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिल रहा है, डिफेक्टिव या डेफिशिएंट कमोडिटी है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, तो आप ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में जाकर कंप्लेन कर सकते हो.
Rights of consumer. Consumer commits mistake in selection of right commodity due to the lack of information regarding different types of commodities available in the market and could not receive proper incentives on money spent by him. His money is wasted. अब कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर मिस्टेक इसीलिए करता है बिकॉज कंज्यूमर को खुद को ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और किस तरह की प्रॉपर इंसेंटिव्स उसकी होती हैं, राइट? बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंज्यूमर जो है वो अपना पैसा भी वेस्ट करता है और वो चीट हो जाता है. He invites many types of diseases of purchasing edible objects of low quality, duplicate, or adulterated, and of low quality, which harms the health. Moral standard of society goes down due to immoral activities like undermeasurement, adulteration, duplication, cheating, looting in price, or corruption. अब बिकॉज द कंज्यूमर इज नॉट इन्फॉर्म्ड या कंज्यूमर इज नॉट अवेयर तो वो गलत चीज़ परचेज कर लेता है, लो क्वालिटी की चीज़ परचेस कर लेता है, मिलावट वाली चीज़ परचेस कर लेता है. फिर उससे कई बार क्या होता है कि हाँ, हेल्थ को भी हार्म हो जाता है बिकॉज़ अगर आप कोई ईटेबल ले रहे हो, कोई खाने की चीज़ ले रहे हो जो डुप्लीकेट हो, लो क्वालिटी की हो या कोई अंडर मेजरमेंट चीज़ हो, कोई मिलावट वाली हो, राइट? तो यू आर चीटेड, लूटेड एंड प्राइस करप्शन. Laws have been framed so that the producers and traders maintain uniformity and transparency in price, quantity, quality of products. Because of the provision, consumers become aware and is educated by various tricks adopted for exploiting them and how to fight against malpractices. अब ये सब लॉज इसीलिए बने हैं सो दैट यू नो द वन हु इज प्रोड्यूसिंग इट, द वन हु इज मैन्युफैक्चरिंग इट, उधर से लेके मैन्युफैक्चरर से लेकर द वन हु सेलिंग इट, जो बिजनेसमैन है, राइट, वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करे. यूनिफॉर्मिटी मतलब कि भाई आप इतना ज़्यादा भाव ना लगा पाए, राइट, अच्छा प्राइस रखें, क्वांटिटी शुड बी गुड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन्ड. Many rights have been granted for understanding various solutions under this act. What is the main objective? You can underline this. The main objective of consumer awareness is to protect these rights. According to the law, consumers have been given six rights. How many rights have been given to the consumer? Six rights. Right to safety, right to get information, right to choose, right to be heard or right to present, right to seek redressal, and last is right to get consumer education, right? So let us read what is right to safety. Consumer has a right to be protected if the commodity or service is dangerous or harmful for health. He has a right to get protection for the maintenance of physical environment and quality of life. Suppose आपने कोई चीज़ परचेज की है और द सर्विस विच यू हैव टेकन, उसके कारण आपकी हेल्थ को कोई इशू हो गया है, मतलब प्रॉपर क्वालिटी की नहीं है वो, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और मोस्टली इट हैपन्स विद ईडेबल थिंग्स, तो यू हैव द राइट टू कंप्लेन बिकॉज आपकी राइट टू सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है. नेक्स्ट कम्स राइट टू गेट इंफॉर्मेशन. यू हैव द फुल राइट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विस व्हाट यू आर टेकिंग, राइट? अब you what you should know about the quality, quantity, capacity, purity, class, standard, usage, price ऑफ द कमोडिटीज और सर्विसेज. कई बार हम किसी शॉप में जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का है, क्या प्राइस है, क्या साइज है, क्या ये है. तो मैनी ऑफ द टाइम यू नो दैट दैट शॉपकीपर और द ट्रेडर ही गेट्स बग कि इतने सारे, बट हमारी पूरी राइट है टू नो द इंफॉर्मेशन. जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उस प्रोडक्ट के बारे में जानना आपकी राइट है, right? So that he may be protected in the market against the malpractices or corrupt prices. With the help of the right to information, the consumer is encouraged to behave responsibility. और अगर आपको proper informations होंगी तो definitely you will not be cheated and एक responsible person की तरह आप जो है encouraged भी होंगी. The consumer gets information from label, packing, advertisement, price list, government, public news, and reports.
सी हमको जो पैकेट्स आते हैं उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, लेकिन मैनी ऑफ द टाइम्स अगर हमें ही पता ना हो उन इंफॉर्मेशन के बारे में कि इस लोगों को जैसे आईएसआई मार्क होना चाहिए, एक मार्क होना चाहिए। अच्छा, कुछ जो ये लाइंस बनी हुई होती हैं तो ये लाइंस मतलब क्या क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, राइट? ये जो पैकेट्स में लाइंस बनी होती हैं, जो लोगो जो पैक्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर हमें पता नहीं होंगी तो हाउ विल वी ask for it, right? So first of all, it is very important that the consumer himself should be informed. Right to choose. Consumer has a right to access a variety of goods at competitive rates, choosing commodity or service which could earn maximum profit and has good quality. और ये हमारी राइट है कि हम वैरायटी ऑफ गुड्स, जो इतना कितना बड़ा मार्केट है, राइट, द ग्लोबल मार्केट, अब हम इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है प्रोडक्ट्स की। अब वो प्रोडक्ट्स की जो वैरायटीज़ हैं उसमें अच्छे रेट्स में हम खरीद सकें, राइट? अब जैसे कई बार हम लोग कई कोई चीज़ लेने जाते हैं तो तुरंत जैसे फ्रिज लेने गए या वॉशिंग मशीन लेने गए या जो भी, और तुरंत ही हम ऑनलाइन भी देखने लग जाते हैं। आजकल उनके सामने बिग शोरूम्स में जाते हैं और हम तुरंत ही ऑनलाइन भी देखने लग जाते हैं और हम बोलते हैं अरे ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है, राइट? बिकॉज नाउ इट इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड, राइट? टेक्नोलॉजी भी इतना हो गया है, ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ है, so we have the right to choose. Objective of the right to choose is to confirm reasonable price, satisfactory service, and assurance of the quality. Consumer has the freedom to choose such a commodity which is most convenient. And after knowing all these things, right, सब कुछ देखने के बाद देन कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू चूज़ कि उसको कहाँ से लेना है और कितना लेना है, किस तरह लेना है। राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट, मतलब आप अगर कंप्लेन कर रहे हो तो कंज्यूमर की राइट है कि ही शुड बी हर्ड, मतलब वो अपने आप को बता पाए अगर उसको चीट हुआ है तो डेफिनेटली इट इज़ इज राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एंड अपनी बोल सके कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है इस प्रोडक्ट में, या ये जो प्रोडक्ट आपने दी है वो सही नहीं है। Under this law, such an agreement are made in which rights and interests of the consumers are protected, represented, and considered. There is also a provision to make arrangement in which non-political, non-commercial consumer society is formed, having its own consumer representative who can represent their interests properly. कई बार जो है कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं, मतलब नॉन कमर्शियल सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ने भी बनाया हुआ है, जैसे कोई फोरम अगर हम बोलो, राइट? तो वहाँ पर आप अपना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है किसी प्रोडक्ट का तो आप वहाँ जाकर लिखवा सकते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ से खरीदा था, वो सही नहीं था, एंड आप जो है आगे बढ़ सकते हो। दिस इज योर राइट। Right to seek redressal. These rights give right to consumer to make complaint against the dishonest commercial practices or lose due to the negligence and ethical exploitation. It is back again कि भाई अगर आपने कुछ खरीदा है, as we discussed in the last para, right, you have the right to be heard, and then right to seek redressal. You have full right to complain about the ethical exploitations या dishonesty which has been, for which आपको जो है प्रॉब्लम हुई है। It also gives right to consumer to be prevented from loss by asking for compensation. और अगर आपको कुछ लॉस हुआ है, प्रोडक्ट सही नहीं निकला है तो यू कैन इवन आस्क फॉर द कंपनसेशन। मतलब कंपनसेशन क्या होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर जो आपको तकलीफ हुई है उस प्रोडक्ट के कारण, समथिंग हैज़ हैपन, कोई भी, तो वो कंपनसेशन भी वो कंपनी आपको करके देती है जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है। In this, a consumer may ask for one or more than one relief like exchange of goods, गुड्स को एक्सचेंज करना, रिटर्न कर देना, या रिटर्न ऑफ मनी ले सकती है, रिपेयर करवा सकती है विदाउट आस्किंग फॉर चार्ज एटसेट्रा। कंज्यूमर में आस्क फॉर इंसेंटिव्स और नॉट, बट इट इज एंटाइटल्ड टू गेट इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स वो होते हैं कि जैसे आप
एज आई टोल्ड यू कि वो प्रोडक्ट लेने आप गए और प्रोडक्ट से जो तकलीफ हुई तो उसके कारण आपको 2-3 बार आना पड़ा। आप ट्रांसपोर्ट फ़ी जितना एक छोटा-सा ट्रांसपोर्ट फ़ी भी आप उनसे ले सकते हैं कि बिकॉज़ ऑफ दिस आई हैड टू कम एंड अगेन फॉर द एक्सचेंज, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सही नहीं था। तो कंपनी इज़ लायबल टू पे फॉर ऑल दीज़ इंसेंटिव्स। राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। अब अगर मैं ये सीक रिड्रेसल की बात करूँ, आप देखो कई बार ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हो तो मैनी ऑफ द टाइम्स अगर आपने जो साइज़ लिखा है ये है गलत अगर आ गया है तो वो लोग वापस भेजते हैं। अब फिर कितनी बार हम एक्सचेंज करवा सकते हैं ना, दे नेवर से नो, राइट? राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे की जितनी भी राइट्स के बारे में बात किए हैं, ये सारी राइट्स जो है वो आपको कब मिलेंगी, जब आपको खुद पता होगा कि दीज आर द राइट्स व्हाट आई हैव गॉट, यू आर अवेयर ऑफ इट, यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, यू आर educated about these rights, right? This right ensures that a consumer gets complete information and develops patience and skill. Factors responsible for exploitation of consumer at a village level are ignorance, lack of awareness among consumers. See, if you are not aware about what rights you have got, तो आप क्या हो जाओगे, आप एक्सप्लॉइट हो जाओगे। जैसे जो कंज्यूमर्स विलेज लेवल पे है द पी और द, सिर्फ विलेज लेवल की बात नहीं है, कई बार ऐसा है कि हम सिटीज़ में भी, दो वी आर एजुकेटेड लेकिन वी आर नॉट अवेयर। We might be educated but we are not aware of the consumer rights, right? तो भी हम जो है cheat हो जाते हैं, we are ignorant about it, right? By including it in the school curriculum, efforts should be made to train consumers and to improve their skill through meetings of different institution. Consumer education related to discussion session, एग्जिबिशंस, डिस्कोर्सेस, वर्क कैंप्स एट्सेट्रा। अब ये अगर सपोज आपकी टेक्स्ट बुक में अगर डाला है तो वो क्यों ये टॉपिक रखा हुआ है, सो दैट आपको जो है अवेयर किया जाए अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। सो इस तरह जो है हम कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकते हैं थ्रू डिबेट्स, through sessions, through discussions, through courses, right? So that they may play the role of an alert consumer in the market. So consumer education is helpful in this. Okay, so these are the rights which are given to all of us as a consumer. लेकिन ऑलवेज आई हैव सेड कि कोई भी चीज़ की वेन एवर वी टॉक अबाउट द राइट्स तो हमारी ड्यूटीज़ भी आ जाती हैं। ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, राइट? राइट्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे हक के बारे में बात कर रहे हैं, हमें ये मिलना चाहिए। तो जब हम हक की बात करते हैं तो हमें फ़र्ज़ भी निभाना होता है। हक और फर्ज दोनों साथ साथ चलते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑलवेज परफॉर्म्ड टुगेदर। तो एज वी स्पोक अबाउट द राइट्स, लेट अस आल्सो नो अबाउट व्हाट आर द ड्यूटीज। ड्यूटीज भी कंज्यूमर की क्या होती हैं? As the consumers are cautious about their rights, in the same way they should show reflexes towards their responsibilities or duties. While purchasing a commodity or service, consumers should make the correct choice. At the time of purchasing a product, consumers should purchase the product having good quality, reasonable price, guarantee or warranty, after sales service. He should purchase goods having standard signs like BIS, ISI, or egg mark. While purchasing electrical or electronic gadgets, priority should be given to the purchase standards or branded items only. देखो आप कई बार आजकल आप शॉप्स पे जाते हो या बिल्स लेते हो, दे ऑलवेज राइट ओवर देयर नो गारंटी, नो वारंटी, किसी भी प्रोडक्ट की कोई वारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना? फैशन की दुनिया में कोई गारंटी वारंटी नहीं, ये सारे स्लोगन्स शॉप्स पे लिखे हुए होते हैं। So whenever we are buying, especially the electronic items when we are buying and all, तो definitely हमें standard products लेने चाहिए, हमें branded products लेने चाहिए. These are the signs, you know, BIS, ISI, egg mark. At the time of purchasing a product from many products, choices has to be made. While choosing a product, they should all have information. They should check the label and information given in the advertisement and ensure themselves like a discreet and aware consumer. अब जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो आपको डेफिनेटली उसका लेबल देखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज चेक द लेबल, और लेबल जब आप चेक करते हो आपको सारी इंफॉर्मेशन उस लेबल में मिल जाती है।
As a consumer, his decisions and behavior should be wise, intelligent, calculative, and bearing common sense so that he may be protected against exploitation and cheating. See, many of the times where we run behind the sale, राइट, मेगा सेल चल रही है, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, या क्लियरेंस चल रहा है, राइट, 2 शर्ट्स पे 5 3 और शर्ट्स फ्री, 5 शर्ट पे 4 शर्ट्स फ्री, इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल व्हाट आई एम गिविंग यू, राइट? बट एक्चुअली वाइज़ली हम अगर हम कैलकुलेट करें और नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करें, वही चीज़ अगर हम एक-एक शर्ट अगर खरीदेंगे, हमारा कैलकुलेशन सेम बैठ जाता है मेनी ऑफ द टाइम्स, राइट? वो टोटल अमाउंट सेम आ जाती है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल आई गिव यू। इट इज नॉट ऑलवेज द सेम इन एवरी सेल, बट it is, I mean to say that every consumer, while purchasing, while taking the decision, the consumer should be wise, intelligent and calculate करके common sense से वो सारे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, सो दैट वी आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड चीटेड। क्योंकि ये लेने के बाद और फिर अगर आप कंप्लेन करो तो आपकी कोई कंप्लेन सुनेगा नहीं। It is a duty of the consumer that his conduct or behavior towards seller or producer should be gentle and bona fide. अब डेफिनेटली कंज्यूमर का जो बिहेवियर होना चाहिए सेलर और प्रोड्यूसर की तरफ, वो थोड़ा जेंटल होना चाहिए। It is not about only the behavior towards the seller or producer, it is a behavior towards everybody. If you are gentle or your approach is fine, I think the work will be done. A consumer should insist on having an original bill or original receipt of items or services purchased by him. He should also insist on getting warranty card filled, signature of a seller should be there along with stamp. सो वेन एवर यू आर बाइंग एनी थिंग, कई बार एज हम लोगों ने डिस्कस वो प्राइस राइज के टाइम पर भी किया था, वी वी डोंट बाय द ओरिजिनल बिल्स और ओरिजिनल रिसिप्ट्स बिकॉज हमें वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा है, बिल्स नहीं ले रहे हम, वो ब्लैक मनी वाइट मनी हमने डिस्कस किया था। एंड देन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसके पास नहीं जा सकते, बिकॉज आपने कुछ बिल ही नहीं लिया, क्या आपके पास गारंटी है कि आपने लिया है उससे? ठीक है। फिर वारंटी कार्ड अगर वो आपको दे रहा है तो क्या वारंटी कार्ड आप लोगों ने फिल किया है, राइट? तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच अ कंज्यूमर शुड टेक केयर ऑफ. Consumers should come together and form voluntary consumer organization or association at non-political and non-commercial level. With the help of these organizations, they should do hereby ready. They should be ready to give legal fight for solution of problems related to consumer complaint. और जब consumer जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाता है फॉर मतलब इफ़ यू आर चीटेड एंड इफ़ यू गो टू द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू शुड नो एक्चुअली उधर भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए व्हेन यू आर फाइलिंग अ केस। फिर वहाँ पर भी अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो देन अगैन यू विल बी चीटेड. They ask for representation in different government committees related to consumer. So it is a duty of consumer that he should fight against exploitation. मैनी ऑफ द टाइम्स जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो हमें खुद को ही एज अ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और कि वी गेट टायर्ड कि सच अ बिग प्रोसेस एंड ये एंड वी लीव इट, मतलब वहाँ पर भी हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते हैं. कंज्यूमर शुड मेक वर्बल और रिटन कंप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आप कंप्लेन किस तरह करते हैं. वर्बल मतलब ओरली, और रिटन कंप्लेन टू अ ऑफिसर ऑफ अ रिलेटेड डिपार्टमेंट विदाउट फेल. कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आपने परचेज की है कहीं से और वो फॉल्टी निकली है, इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट प्रोडक्ट, सबसे पहले तो हमें उनको रिटन कंप्लेन करनी चाहिए और वर्बली जाकर बोलना चाहिए टू द कंसर्न ऑफिसर, राइट? ये एक प्रोसेस में आता है. फर्स्ट यू शुड लेट देम नो. दे शुड ऑल्सो टेक कोऑपरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट non-profitable institution in order to prevent or eliminate complaint related to the wide interests of a consumer. And then they will वो वो भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का कोऑपरेशन ले सकते हैं, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर गोइंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि उस ऑफिसर के पास आप रिटर्न कंप्लेन लेके जाओ और वर्बल कंप्लेन लेकर जाओ. सो मतलब वहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन आ सकता है.
While purchasing a product, consumer should not make any compromise with the quality of product or its safety. He should always insist on purchasing a product after checking packing, rate, date of manufacture, batch number, weight, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ प्रोड्यूसर, एड्रेस एटसेट्रा. एज आई सेड, बहुत बार कई बार हम सेल वगैरह में ले लेते हैं या दिवाली धमाका में ले लिया या कोई फेस्टिवल धमाका में हमने चीज़ें ले ली, लेकिन हम बहुत बार उस समय ही एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, उस समय चीट चीट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ होती है, वो भीड़ के बीच में वी वांट टू रश अप, तो हम लोगों ने वेट, एक्सपायरी डेट कुछ चेक नहीं किया. देन यू कैन नॉट गो एंड कंप्लेन टू देम, right? Because it is your duty to first actually check and then take, right? While purchasing a product, if the consumer finds a product is adulterated, that is mixed or duplicated or fake, or finds decrease in weight, he should immediately bring it to the notice of the trader. उस समय अगर आपको लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट है, मिलावट है, उसमें फेक है, वेट सही नहीं है, तो यू शुड, एज आई टोल्ड यू, कि ट्रेडर की नोटिस में लाना चाहिए. एंड इफ द trader delays in bringing solution, then he should give an application to the authority or consumer court asking for redressal, राइट? तो वो ट्रेडर, वो ऑफिसर, राइट, वो भी बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो अगर वो सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं निकालता है या डिले करता है, तो देन यू कैन फाइल अ केस. फिर आप एप्लीकेशन जो है कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हो फॉर रिड्रेसल. Thus, consumer should perform his duty as a responsible citizen. Consumer should purchase a product in sufficient quantity or number only. He should save himself from purchasing unwanted and unnecessary products by getting attracted from the advertisement or by seeing others or from sale. He should not waste money. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ कंज्यूमर कि कोई भी चीज़ बल्क में तुरंत ना लेवे जब तक आप कंफर्म नहीं हो कि दिस प्रोडक्ट इज़ फाइन, राइट? आप एडवर्टाइजमेंट को देखकर आप बल्क में तो ले आए, क्वांटिटी में ले आए, देन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी. While purchasing weighing scales, implements of measurements, electronic instruments must be checked whether they are correct or not. जब भी हम वेट करवाते तराजू वगैरह को चेक करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अ कंज्यूमर शुड मेक श्योर वेदर द टूल्स ऑफ द मेजरमेंट हैव बीन टेस्टेड, वेरीफाइड by an investigation officer or not. If tools have not been certified every year, the consumer should bring it to the notice of weight and measurement officer. कि अगर जहाँ पर भी वो ट्रेडर का जो मेजरमेंट टूल्स जो है वो टेस्टेड है, वेरीफाइड है बाय अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, राइट, वो हमें पता होनी चाहिए. तो बीइंग अ कंज्यूमर, क्या हम इतने अवेयर है, क्या हमें ये सारी चीज़ें पता है कि सामने वाले के जो वेट्स एंड मेजर्स जो है वो सही है कि नहीं? हमें इतना अवेयर होना पड़ता है बिफोर फाइलिंग एनीथिंग. Director of Legal Metrology of Consumer Affairs at a local level, and if required, he should complain. This is a duty of a vigilant and responsible consumer. द सील ऑफ अ गैस सिलेंडर शुड ऑलवेज बी चेक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. घर पे जो हाउस वाइफ्स होती हैं, राइट, होम मेकर्स जो होती हैं, दे मैनी ऑफ द टाइम्स दे देमसेल्व्स डोंट नो कि जो गैस सिलेंडर आया है तो उसका सील चेक करना चाहिए. मतलब इवन मतलब आपको पता है जब सिलेंडर अपने घर में आता है तो हम उनको वेट भी करवा सकते हैं. कितने लोगों की मम्मियाँ जो है वो एक्चुअली सिलेंडर को वेट करवाती हैं, right? The seal of the gas cylinder should always be checked whether it is intact or not. Taxi or rickshaw should be boarded only after checking the zero देखने के बाद. He should pay as a rate on the meter. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी फिल करवाने से पहले हमें इंडिकेटर देखना चाहिए जीरो का. While purchasing kerosene, one should insist on purchasing only after the foam in measuring can has settled down completely. हम लोग केरोसिन वगैरह तो इधर आप लोगों ने सिटीज़ में देखा नहीं होगा. अगर विलेजेस में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो ना एक गली गली में एक वो केरोसिन बेचने वाला आता है और वो ऐसे टैप खोलता है और वो केरोसिन जो है वो जार में दे के जाता है. तो जब केरोसिन जार में जा रहा होता है ना, तो फोम जम जाता है ऊपर, राइट? तो जब फोम होता है वो जब सेटल हो जाए तो फिर यू विल सी कि थोड़ा सा जार अभी खाली है. लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऐसे फ़ोम के साथ ही डालते जाते हैं, 1 लीटर हो गया, आधा लीटर हो गया ये. तो ये हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब फ़ोम सेटल हो जाए, सो दैट यू गेट अ प्रॉपर मेजरमेंट. Weighing should be done on that scale on which it is hung on its stand. When scale is held in hand, there are chances of cheating.
जो तराजू होता है, जो हाथ में अगर पकड़ा हुआ हो, तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पर चीटिंग हो सकती है। स्टैंड पे अगर रखा हुआ है तो लेस चीटिंग होती है। चीटिंग तो उसमें भी वो कई तरह से कर सकते हैं, बट थोड़ा लेस हो जाता है। A consumer should either himself go to a consumer forum or should complain through consumer society against the negligence in the improvement of railway, bank, insurance, telephone or hospital service, or for compensation for physical, mental and economical harm ड्यू टू लैक ऑफ सर्विसेज। कई बार हम रेलवेज में देखो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, एसी में ट्रैवल्स कर रहे होते हैं, तो वी सी द ब्लैंकेट्स आर स्मेलिंग, या जो वाइट शीट्स है उसमें स्टेन लगे हुए हैं। तो क्या हम लोगों ने एक्चुअली कंप्लेन किया है? राइट। सो अगर हमें अवेयर होंगे, राइट, वहाँ पे कंप्लेन बॉक्स होता है, हम अगर लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्रैवल यू विल फाइंड अ बेटर प्लेस, वो सही होगी, क्लीन होगी। राइट। बैंक्स में, इंश्योरेंस में, टेलीफोन्स में कई बार हमारा बिल तो आ जाता है, वो बेसिक बिल तो आ जाता है, लेकिन हाफ ऑफ द टाइम 15 दिन वो बीएसएनएल वाला बंद रहता है ना? लेकिन बेसिक तो आएगा। तो उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर आपका फ़ोन बंद है, आपने देखो आप किसी भी चीज़ की आप कंप्लेन करते हो ना, तो आपको वो कंप्लेन नंबर लिख देते हैं। जभी भी आपको कंप्लेन नंबर दिया जाता है, आप अगर वो एक पर्टिकुलर डेट पर, सपोज़ आज आपने कंप्लेन की और आज आपको कंप्लेन नंबर मिला, तो विदिन 48 आवर्स अगर आपकी कंप्लेन जो है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। कंज्यूमर अवेयर में जा सकते हो, राइट? लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए कौन-सी डेट को दिया, कंप्लेन नंबर क्या है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म नहीं रहते हैं, राइट? आप उसके बाद उसका पेमेंट नहीं कर सकते हो। राइट, ये सारे पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो सारे रूल्स हमें पता होनी चाहिए। Consumers should give details of news of judgment and compensation received on local TV channel and get it published in the newspaper so that the other consumer may know about the injustice done to them. By informing about the judgment, they may be prevented from being victimized. अगर if you are cheated, तो हमें information आप न्यूज़पेपर में दो तो दूसरा कोई कंज्यूमर भी चीट नहीं हो सकता। Thus, it is also his responsibility to bring consumer awareness and work for the consumer education participate. 13th point. Consumers should participate in enthusiastically in different consumer awareness programs, movement arranged by consumer society, discussions or seminars, thus try to give a thrust to the movement of consumer protection in the society. So it is very important कि consumers should participate in different organizations and programs, interestingly, right? Discussions में, seminars में, so that the other people are also not cheated. So this is a movement towards the consumer protection in the society, right? Since there are measures of consumer protections also, which we are going to do in our next lecture.